مجھ سے بات کرنا. آج جو تم ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, جو کلام تم نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کی طرح شکر کرتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے. اور تیرا کلام جو کہ شہد ہے, جس کی میٹھی باتیں, جس کی تازگی کی باتیں ہمیں زندہ کرتی ہیں. خدا آج جب تو بات کرنے والا ہے تو ہمیں سننے والے کام اور قبول کرنے والا دل عطا کرنا. ہاں خدا, ہم بڑی عاجزی کے ساتھ, روشنی کے ساتھ تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور سارا جلال تجھ کو دیتے ہیں. ساری تعریف ہم و ستائش خدا خدا تیری ہی کرتے ہیں. تو بڑھ اور ہم جھکے. یہ خدا کی کلام ہے. آمین. ہاللویا. پریز گاڈ. آئیے تالیاں بجائیں گے. میرے ساتھ مل کر نکالیے پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. خوبصورت باب ہے یہ. اس میں حنا کی دعا, ایلی کے بیٹوں کا غصہ, ساموئیل کا خدا سے خدا کے حضور میں ایلی کے پاس آنا, یہ سب میں مطلوب ہے. ایلی اور اس کے بیٹوں کے لیے جو خدا کی عدالت تھی, اس کے بارے میں نبوت اور بہت کچھ اس میں ہمیں ملتا ہے. اگر آپ سب نے نکال دیا ہے تو میرے ساتھ میں کر کریے آمین. جن کے پاس بائبل ہے وہ ہوا میں اپنی بائبل پھیلا دیں. 1 2 3 4 5 6. آئیے تالیاں بجائیں گے. 6 لوگ بائبل لے کر آئیں گے. ان سے لوگوں کو نکالنا. لوگوں نے تو نہیں جانا, ہم سب جانا چاہتے ہیں. آسمان کی بادشاہی میں ہم سب جانا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. ہم سب کو تیاری کی ضرورت ہے. تم اپنا ہتھیار خدا کا کلام آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور اپنے ساتھ لے کر آئیے. یہاں جو لکھا ہے پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے, اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے, انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. اور کاملوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کامل کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سہ شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا اور اس کو کڑا یا دیگچے یا ہنڈے یا ہانڈی میں ڈالتا, اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا. یوں ہی وہ سیلا میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے. بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے, کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا دے گا. اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا, تو وہ اسے جواب دیتا نہیں, تو مجھے ابھی دے, نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا. تو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا, کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے. آمین. اس کے بعد ہم تلاوت کریں گے 22 آیت سے اسی چیپٹر کی. اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا. غور کیجیے گا, اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں, اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کرتے ہیں. اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو, کیونکہ میں تمہاری بدکاریاں تمام قوم سے سنتا ہوں. نہیں میرے بیٹوں, یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں. تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو. اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا,
لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے، کہیں میرے ساتھ مل کر، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ پھر سے پڑھیں گے، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا، اور وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقصد تھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے 27 آئے جہاں ایلی کے خاندان کے خلاف پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، کس سے کہنے لگا؟ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا میں تیرے آبائی خاندان کا جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چننا دیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور عبور پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آپ سے گزرانتے ہیں میرے باپ کو ڈالی؟ بس تم کیوں میرے اس ذبیح اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ اس لیے خدا اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خدا فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور وہ جو میری تحقیق کرتے ہیں لے کر رکھوں گی۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور تیرے باپ کے گھرانے کا باپ ہوں، کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بوڑھا نہ ہونے پائے، کہ سب جوان مر جائیں گے۔ یہ کوئی تسلی کا کلام ہے؟ پروفیسی جو ہوئی ہے، نبوت جو ہوئی ہے، کیا یہ ایلی کے لیے تسلی کی بات ہوئی ہے؟ کلام تو تسلی ہے، لیکن چونکہ کلام کا غلام ہے، چونکہ خداوند کی عزت سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت ہے، خداوند کے حکم سے بڑھ کر اپنے بیٹوں کا ڈر خوف ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اس لیے تم میں سے تمہارے گھرانے میں سے کوئی بھی بھوکا نہ ہو پائے گا، بڑھاپا نہیں دیکھے گا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے، اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا، باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے گا، پھر سے کبھی کوئی بوڑھا نہ ہونے پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں اپنی مذبح سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو بلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بڑی اپنی بھری جوانی میں مرنے دے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا، وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا۔ آئیے تو دل پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ خداوند میں وہ ایک زندہ انجیل بنوں گا جو سب کچھ تیری مرضی اور تیری منشا کے مطابق کرے گی، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے منصوبے کے آگے آگے چلے گا، اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے
सामने आकर सजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का निवारा पा सकूं। आमीन। खुदा हम समाप्त नाम का बड़ा गुणगान सबों के लिए वाइस करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ हमने देखा कि एली के बेटे शरीर, उनको क्या उनको टाइटल दिया गया है, बहुत शरीर थे और ये खुदावन के हुक्म की अगुवाई करते थे, खुदावन की कुर्बानी की बेहुरमती कर रहे थे। ये जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कुर्बानी की गोश्त के साथ आपने पहले चर्बी को जलाना है, ये उसमें से पहले ही अपने लिए गोश्त, इससे पहले कि वो कुर्बानी के लिए चढ़ाया जाए, पहले ही वो गोश्त अपना हिस्सा जो कि उनके लिए महसूस होता था। अगर अहबार की किताब हम उसका 7 बाब और 31 से 34 आयत देखें, आइए मेरे सामने से खोलिए अहबार की किताब, खुरूज के बाद अहबार की किताब है 7 बाब और उसकी 31 से 34 आयत तक। यहाँ लिखा है, और काहीन चर्बी को मत्वा पर जलाए, पर सीना हारून और उसके बेटों का हो। हारून जो कि काहीन था, और तुम सलामती की जमीनों की दहली रात उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहीन को देना। हारून के बेटे में से जो सलामती के जमीनों का खून और चर्बी गुजराने, वही वो दहली दान अपना हिस्सा दे। यानी काहीनों का हिस्सा था, लेकिन वो पहले ही चर्बी जलाने से पहले ही अपना हिस्सा उनसे छीन लिया करते थे। वो अपने नौकर को भेजता और नौकर जिस तरह से आपने देखा कि पहले से ही देगची में कड़े में डालकर, चुनटा डालकर, चीज डालकर और पहले से निकालते, और अगर कोई जबरदस्ती करता, कोई देना नहीं चाहता, तो उनसे कहते थे कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम छीन लेंगे। राइट, यहाँ पर वो खुदाम की कुर्बानी की बेहुरमती कर रहे थे, ना सिर्फ हुक्म के खिलाफ जा रहे थे कि लड़के, बल्कि खुदाम की बेहुरमती कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे उस हुक्म की, उस लॉ की, उस तरीके की जो खुदाम ने उनको दिया था। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो उनकी कॉलिंग थी, उनकी जो खिदमत थी, उसमें वे ज्यादा भी कर रहे थे? याद रखें कि जब खिदमत में लालच या दुनियावी फायदा, खिदमत में गौर सुनिएगा, लालच या दुनियावी फायदा, इवन कई दफा हम खिदमत को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। खिदमत में लालच और दुनियावी फायदा जब आ जाए तो हम खुदा के हुक्म के खिलाफ तो जा ही रहे होंगे, लेकिन हम खुदा की बेहुरमती भी करते हैं। सीधा सीधा हम यीशु को, खुदा को चैलेंज करते हैं। और ये सिर्फ रुपये पैसे का ही खेल नहीं है खिदमत। यहाँ पर आपकी एफर्ट, यहाँ पर आपकी टैलेंट, जिसमें अगर आप पेश करते हैं अपने आप को, या छुपाते हैं, अपनी किसी चीज को दबाते हैं या ढकते हैं अपने किसी खुदा की ऐसी नेमत को जो आपके पास है, तो डेफिनेटली आप खुदा की बेहुरमती कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या कहीं हम खिदमत में ध्यान तो नहीं करते? सवाल है आपसे। और खिदमत सबके लिए, गुड न्यूज का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम खुदा ने सबको हुक्म दिया। कोई कह सकता है कि ये हुक्म मेरे लिए नहीं था, सिर्फ शागिर्दों के लिए था? कोई कह सकता है जाओ तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाना? कोई कह सकता है कि ये कमीशन, कि ग्रेट कमीशन, ये इरशाद आज़म जो दिया गया शागिर्दों के लिए था, उन 12 रसूलों के लिए, मेरे लिए नहीं था? आप कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब कौन है? यीशु के, हम सब यीशु के, हम यीशु के शागिर्द हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं, और ये हुक्म हमारे लिए है। तो अपनी खिदमत में, अपनी कॉलिंग में किसी तरह का भी कोई कागज, मिलावट या किसी तरह की भी कोई खेती या किसी तरह का भी कोई दुनियावी फायदा बगैर सोचे हमने खुदा की खिदमत करनी है। आमीन, हालेलुया। खिदमत में जाती लालच, दुनियावी फायदा, खुदा की बेहुरमती। यहाँ हम देखते हैं कि मैंने आपको 22वीं आयत में पढ़ाई सुना देखा था कि एली ने जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने सब कुछ सुना। कहें कि एली ने सब कुछ सुना, सब कुछ सुना। आगे भी लिखता है कि तमाम
करना चाहिए था, ऐसा काम बोर्ड ने नहीं किया। करना क्या चाहिए था? कोई बता सकता है तो क्या करना चाहिए था? कोई एक बात उनके ऊपर लाठी चलाता, डांटता। यस, ओके। और कोई बता सकते हैं क्या किया जा सकता था? उनके लिए दुआ, ओके, ठीक है। और कोई बात? और किसी दिल में कोई बात आती है? सबसे पहले उसको खुद माफी मांगने की जरूरत है। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि तुम मोटे बन गए हो, तुम लोग मोटे बन गए हो, जबकि गुनाह एली नहीं कर रहा था, लेकिन गुनाह को देखकर खामोश हो जाने वाला, कुछ ना करने वाला उस जुर्म में शरीक हो जाए पूरा, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके बेटे क्या कर रहे हैं। वो काहिन था, उसके बेटे भी काहिन थे, उसके लिए जरूरी था कि वो खुदा के हुजूर में झुके, माफी मांगे, अपने बेटों को करेक्ट करे, राइट टाइम पर उन्हें करेक्ट करे, टाइमली उन्हें करेक्ट करे, और ना सिर्फ करेक्ट करे बल्कि इस खिदमत में जब वो बदयानती कर रहे थे, अगर तो वो चीजें नहीं होते तो मैं अगर होती, या मैं समझती हूँ कि उस दौर के अगर हम में से कोई होता, तो पुराने जमाने में हम कई जगह देखते हैं जहाँ पर इस तरह का कोई काम होता था, खुदा के हुक्म की अबूदी होती थी, तो डेफिनेटली उनको वो खत्म कर देता, एंड कर देता, क्योंकि इन दी एंड भी उन्होंने मरना ही था। खुदा ने कहा कि क्योंकि खुदा उनको मार डालना चाहता था, खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता। लेकिन जब हम खुदा के अगेंस्ट हो जाते हैं, जब हम गुनाह में पड़ते हैं, तो गुनाह में मौत है। आप सब जानते हैं, हालेलुया। एली इतराफ कर सकता था, एली एलानिया, जैसे कौम ने बताया था, कौम जानती थी सारी कि इसके बेटे क्या कर रहे हैं, एली एलानिया उनकी खिदमत से अलग करवा सकता था, राइट, कर सकता था ऐसा। मैं गलत तो नहीं कह रही, मैं गलत तो नहीं कह रही, राइट। फिर एली खिदमत में उनकी इस्लाह कर सकता था कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे करो। बाइबल में शरीयत हमें ये बताती है, कलाम हमें ये कह रहा है, पीछे से यूं होता आया है, ये तालीम है, और उन्हें पाकीज़गी की इस्लाह करता कि यूं करके हम कुर्बानी को बेइज्जत कर रहे हैं, गुरबत कर रहे हैं, उसकी पाकीज़गी में हम उसकी जो होलीनेस है उसको हम खराब कर रहे हैं। लेकिन एली ने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं नेनुआ में जब खुदा ने, नेनुआ में कौन सी बात कर रहे हैं बताइए? नेनुआ किस नबी की बात कर रहे हैं? यूना नबी को जब कहा गया कि नेनुआ को जा, तो वो कहाँ गया? गलती कौन करें सारी चीज को। जब नेनुआ खुदा के हुजूर में झुका, जब उनके बादशाह, उनके इवन मवेशी तक सब ने टाट ओढ़ लिया, अपने लिबास उतार दिए और टाट ओढ़ कर बैठ गए और 2 दिन मुनादी की और उन्होंने तौबा की, तो खुदा ने उनको माफ किया। तो क्या खुदा एली को और उसके बेटों को माफ नहीं कर सकता था? कर सकता था। यही गलती आदम और हवा ने भी की। क्या आदम और हवा खुदा के हुजूर पे माफी नहीं मांग सकते थे? लेकिन ये भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने लगे। तो जरूरत इस बात की है कि अगर आज आपसे या मुझसे खिदमत में अगर कहीं कोई कोताही हो रही है, कहीं कोई गलती हो रही है, गफलत हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो जरूर है कि हम अपनी गलती का इकरार करें। ये वक्त है, ये मैसेज आज हमें इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आज वक्त हम एक बार फिर खुदा के हुजूर में झुके। खुदा को जमीन कहीं अपने साथ बड़े भाई से खुदा शफकत में लगी, खुदा वफा शफकत में नहीं है, वो बाप होता खुदा है। आए कि आपको बंद करें खुदा कहें मेरे पीछे खुदा, जहाँ कहीं मुझसे जाने अनजाने में क्या परवानगी है, जहाँ मैंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचाना, खुदा मुझे माफ कर और मुझ पर रहम कर।
दूंगी। हालेलुया। खुदा मुझे भूमि में खड़ा किया है। आइए खुश हो गए, सब तालियां बजाते हुए। और वो क्रॉस करता है, मतलब ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस लौट कर आए। खुदा का हरगिज़ ये इरादा नहीं है कि आपको नेक नाबूद करे, क्योंकि खुदा मुझे जिंदगी देने आया और कसरत की जिंदगी देने। कैसी जिंदगी? गरीबों वाली जिंदगी नहीं, मांगने वाली जिंदगी नहीं, शर्मिंदगी वाली जिंदगी नहीं, बल्कि कसरत की जिंदगी, भरपूर जिंदगी, ताजगी वाली जिंदगी जो खुदा में हो। हालेलुया। तो गुनाह को देखकर खामोश रहने वाला भी गुनाह में शामिल होता है, शरीक हो जाता है। 3 बातों की में आयत है, यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है, एली जानता था, हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। तो जहां कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे रोकना है। जैसे हम अपने मकसद के लिए चीजों को अपनी तरतीब के मुताबिक अरेंज करते हैं, हमें खुदा की तरतीब को भी बरकरार रखने के लिए, उस डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए आवाज उठानी है, अपनी आवाज को दबाना नहीं है, खामोश नहीं हो जाना। हालेलुया। अब एली काहिन का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स ये, जब उसने सब देखा सुना, जब उसको सैमुएल ने भी बताया, इससे पहले मर्दे खुदा ने भी बताया, इससे पहले वो खुद भी कौम तक सुन चुका था कि क्या चल रहा है। एक तो वो कौन से सुन चुका था, ये तो लोगों की बात थी। फिर खुदा का पैगाम नबूवत हुई, मर्दे खुदा यानी नबी, एक नबी था जिसका नाम नहीं आता, उसने उससे कहा कि ऐसा ऐसा चल रहा है और ये सब तेरे बच्चों के खिलाफ, तुम्हारे घराने के खिलाफ हो जाएगा। फिर दूसरी बात, जब सैमुएल से बात हुई तो सैमुएल को भी खुदा ने 3 बार जगाकर, 3 बार आवाज देकर क्या पैगाम दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है जिससे लोगों के कान गुनगुना जाएंगे, इससे पहले नहीं सुना। इसलिए खुदा ने सैमुएल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे हर सुनने वाले के कान गुनगुना जाएंगे। क्या काम? यही काम, यही काम जो उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई है और उसने उनको नहीं रोका। और देख, इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई है कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी जरिए से साफ होगी, ना हदिये से। मैं तीसरे बात की 13-14 आयत पढ़ रही हूँ। और सैमुएल चुप कर देखा रहा और तब उसने खुदा के घर के दरवाजे खोले और सैमुएल एली पर रोया, जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा, जब उसने जबरदस्ती पूछा उसे कि मुझे बताओ खुदा ने क्या कहा है, तो एली का एटीट्यूड देखिए। आज जरूर से हम अपने एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड और खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा के कलाम के इवज हमारा रवैया क्या है। हमसे कई दफा बात की जाती है, हमें बताया जाता है, हमें खुद भी समझ आ जाती है कई दफा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा हूँ मैं या कोई और भाई, लेकिन हम कोई किसी तरह का कोई ना एक्शन लेते, बल्कि एली की बात देखिए यहाँ पे क्या कहा। एली ने कहा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदा ने तुझसे कही है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उसे मुझसे पोशीदा ना रख। क्या उससे पहले खुदा ने पोशीदा रखा था? मर्दे खुदा के थ्रू मैसेज आया था, हाँ, खुदा ने उसे पोशीदा रखी थी, पहले भी मैसेज आया था। अगर तो कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही है छुपाए, तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। तब सैमुएल ने उसको रत्ती बोले, रत्ती हाल बताया, सामने सारी कुछ बताया और उससे कुछ ना छुपाया। अब एली का रिस्पॉन्स देखें, जब नबूवत हुई है, उसने कहा वो खुदावंद है, जो वो भला जाने तो करे। कहें आमीन, कहें आमीन। इसमें एली ने कुछ गलत नहीं कहा, एली ने कुछ गलत कहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? एली ने तो बहुत आदमी का मुजाहिदा किया, यहाँ तो बड़ी कर्मा बरदारी दिख रही है ना, कि जो वो चाहे तो करे, वो तो खुदावंद है, वो भला करता है। एली ने यहाँ पर खुदा की बात को, उसकी नबूवत को, जो सैमुएल और उस मर्दे खुदा के थ्रू उसे हुई थी, उसने उसको बड़ी आजिज़ी के साथ कबूल कर लिया। लेकिन क्या ये इनफ है कि कबूल करें? हम
अपनी गलती को, अपनी बात को, खुदा की बात को सिर्फ कबूल कर लेना क्या इनफ है, काफी है? क्यों उसने ऐसा किया? यहाँ क्या दिखता है? क्योंकि वो रूहानी तौर पर वीक था, कमजोर था, तो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। डिसीजन सिर्फ आपका खुदा के हुजूर में झुकने तक का और डिसीजन लेने का और उस बात को, उस गुनाह को तर्क करने तक का डिसीजन है कि आप सिर्फ अपनी गलती को या अपने गुनाह को जान लें या उसको कबूल कर लें, इतना ही काफी नहीं है। और एली भी यहाँ पर बड़ी आगे से खुदा की बात को कबूल कर रहा था कि वो जो करे तो करे, वो भला है। एली को चाहिए ये था कि ना वो सिर्फ कबूल करता बल्कि वो कोई एक प्रॉपर एक्शन लेता, प्रॉपर एक्शन जिसमें सबसे पहले वो खुदा के हुजूर में झुकता, माफी मांगता, तौबा करता, ना सिर्फ खुद तौबा करता बल्कि अपने बच्चों को भी तरतीब बात बताता कि 2 दफा मुझ पर नबूवत हो गई है, इससे पहले तमाम कौम तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही, जिसकी वजह से मैं और मेरा घराना, हमारा पूरा घराना तबाह हो सकता है, खत्म हो सकता है। ना सिर्फ खत्म होगा बल्कि ये जो कहानत का काम है ये भी हमसे ले लिया जाएगा। क्या उसे जरूरत ना थी कि वो अपने बच्चों को ये इंटीमेट करता और खुदा के हुजूर में झुकता, रोता, माफी मांगता, इकरार करता? क्या इकरार कर लेना ही काफी है गुनाह का? क्या गुनाह का इकरार कर लेना ही काफी है? इकरार करने के बाद तौबा करना निहायत जरूरी है। हम अक्सर यीशु मसीह पर ईमान लाके इकरार करते हैं, लेकिन अपनी जो आदतें हैं, अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो बातें हैं जो हमें पसंद है, हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और यहाँ भी एली जो कि जिसको बड़ी जिम्मेदारी थी, कहानत थी, उसने उस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। आज आप पर भी और मुझ पर भी फर्ज है कि हम एज अ लीडर, एज पेरेंट्स, माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की क्या खुदाम की राह में तरबियत कर रहे हैं, अपने बच्चों की, अपनी औलाद की उस राह में तरबियत कर जिस पर उन्हें जाना है, ताकि वो बूढ़े होने तक भी उससे ना मुड़े। हालेलुया। उन्हें याद रहे, उन्हें याद ना कराना पड़े कि ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए जब हम अपने बच्चों को राइट टाइम पर नहीं करेक्ट करते तो फिर वो उसी गुनाह में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। खुदा के फैसले कबूल करना अच्छी बात है कि खुदा ने कहा है, खुदा भला है, लेकिन उससे भी अच्छी और धनी बात यह है कि आप तौबा करें, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा करना पड़ता है। हालेलुया। 3 दफा वार्निंग उसको हो गई थी, 1 दफा लोगों के थ्रू और 2 दफा नबूवत। इसको कबूल करना ही सिर्फ काफी नहीं था। खामोश कबूलियत ये क्या शो कर रही है कि खामोशी से उसने कबूल कर लिया, ये क्या चीज शो कर रही है? कमजोर ईमान, राइट? प्लस ये कि वो मुंह से तो कबूल कर रहा है मगर दिल से बदलने के लिए तैयार नहीं। मुंह से इकरार कर रहा है कि वो भला है, लेकिन वो दिल से बदलने के लिए, अपने बच्चों को बदलने के लिए, खुद बदलने के लिए, माफी मांगने के लिए रेडी नहीं था। तो खुदा सिर्फ मुंह का इकरार नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि आपका दिल करे। आए देखिए, हाथ रख के आगे बंद करें और कहें कि खुदा मुझे मेरे दिल को बदले। इसमें से सब दिल को निकाल कर बोले, शक्ति को निकाल कर वो 3 दिन था जो जिंदा नहीं है, क्योंकि हम जिंदा खुदा की कोशिश करते हैं। आज हम भी जब हमें बताया जाता है कि आप यहाँ गलत हो, हमारे पास गलत है, हमारे लीडर जैसे कोई आस पास कर लो, या हमें कुछ समझ आ जाती है, हम कहते ठीक है, जो चाहे करने लो, नहीं करेंगे। ये काफी है, देखने में लग रहा है बड़ी आदमी के साथ एक बड़ा हमल कर रहे हैं, बड़ी आदमी के साथ कह रहे हैं उन्होंने की मर्जी है, गुनाह से हो गया है, की करिए, माफी भी बढ़िया, माफिया भी बढ़िया मान नहीं आने। चले जिंदगी से, एक्सेप्टेंस से, कबूलियत से, माफी भी आ गई है, लेकिन तौबा का मतलब यह है कि अपने गुनाह से मुड़ना। तौबा का राइट मतलब यह है कि मुड़ जाना,
का तब्दील होना, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तौबा का मतलब है कि नहीं कि आप टेम्पररी तौर पर इकरार करें, या जब कभी खुदा की हजूरी में बैठे हो आप इकरार करें बार बार लोगों के सामने कि मैं गुनहगार हूँ, मेरी गलती है, मेरा पाप है, मेरी गलती है, मैं गुनहगार हूँ, मगर वो रहीम है, वो माफ करता है। लेकिन आप करते थे वही जा रहे, रिपीटेडली आप वही करते जा रहे। ये तौबा है। खुदा चाहता है कि हम मुकम्मल तौर से आसान होकर उसकी बख्शिश करें। आमीन, हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम दिल से बचें। गलती पर सिर्फ अफसोस कर लेना काफी नहीं होगा। तो मुझे बड़ा अफसोस है मेरी गलती, अक्सर हम गलतियों पर अफसोस करते हैं। अपने बच्चे की जब हमारी कुछ गलती करते हैं तो हमें अफसोस होता है, अफसोस हो रहा है मुझे हमारी मिस्टेक से, अफसोस हो रहा है मुझे हमारी पाप से, अफसोस हो रहा है मुझे कैसे हो गया। लेकिन क्या अफसोस कर लेना ही काफी है? कि सिर्फ अफसोस कर ले, हाँ, कबूल कर लेना भी काफी नहीं, अफसोस कर लेना भी काफी नहीं, आगे सो जाना भी काफी नहीं, तौबा करना काफी है। तौबा करके खुदा की राह पर चलना, ये भी चाहिए। खुदा को इसके अलावा कुछ नहीं है। खुदा आपके मोटे मोटे हदिये, खुदा आपकी कुर्बानियां, ये सब नहीं चाहता। खुदा बच्चे आपको देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप अपना दिल देने के लिए तैयार हैं? अपने पार्टनर्स को दिल दिए, ठीक है, ओके फाइन, अपने अपने कामों में दिल लगाया है, अच्छी बात है। अपनी जिंदगियों में, अपने प्रोफेशन में दिल लगाया है, अपनी एजुकेशन में आपने दिल लगाया, दैट इज वेरी गुड। लेकिन इन सबसे ऊंचा और सबसे बुलंद बात यह है कि आप अपने खुदा के साथ दिल लगाए। दाऊद को खुदा क्या कहता है? क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। हालेलुया। तो दिल लगाना है, दिल से दिल लगाना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कुछ अच्छा नहीं मिलेगा अगर हम दुनिया के लिए करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया कुछ दे सकती है, दुनिया कुछ दे सकती है, मैं आपको कुछ दे सकती हूँ, लेकिन जब यहाँ कलाम बना जाता है, ये कलाम ही है जो हमें जिंदा करता है, ये ही सब कुछ दे सकता है। बोले खुदा ही मुझे सब कुछ दे सकता है, और मैं अपनी आंखें से खुद की तरफ लगाऊंगी, मेरी आंखें तुझी पर रहेंगी और मेरी आंख ना टूटेगी। आमीन, हालेलुया। एली जानता था, मगर एली ने उनको नहीं रोका। 3 दफा वार्निंग दी गई, गलती गलती सब कुछ सैमुएल ने बता दिया, लेकिन ना मानना, उस पर नहीं चलना, उसका रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि लिखा है कि मैंने तेरी नस्ल की कहावत छीन ली। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो चौथे बाब में लिखा है, उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएली फिलिस्तीयों के आगे से भागे और लोगों में से भी बड़ी खूनरेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हुक्की और फिनहास भी मर गए और खुदा का संदूक छिन गया। और खुदा का संदूक छिन गया, जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा। जहाँ कुरान का हम देखते हैं कि संदूक भी छिन गया, कहानत भी जाती गई, तेरी सारी दौलत के बावजूद, और क्या तू मस्कत की मुसीबत भी देखेगा। उसने मस्कत की मुसीबत भी देखी कि संदूक ऐसा का संदूक छीन लिया गया। उसने अपने बेटों को मरते हुए देखा, वो खुद भी मरा। अगर वो इन वार्निंग्स को सुनकर तब्दील हो जाता और अपने बच्चों को राइट टाइम पर करेक्ट करता तो ये सब चीजें उन्हें देखनी नहीं पड़ती। है ना? हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी जब हमें वार्निंग मिल रही है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, आपको वार्निंग मिलती है, सोचिए अपने आप से कि आपको भी वार्निंग मिलती है कि अभी ये खुदा ने मेरी जो जिंदगी बचाई है, कई दफा मिरेकल्स हमारे साथ होते हैं और वो मिरेकल्स मौत से हमारे साथ होते हैं, हमारी जिंदगी बचती है, तो वो क्या लगता है कि आपके अपने लिए वो जिंदगी बची है। जब खुदा ने आपको मौत में से निकाल दिया, कितने लोगों के साथ बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, हाँ, कि आपने आगे गवाही दी हो कि बिल्कुल मरते मरते बचाओ, और कई दफा कई लोग बिल्कुल मौत में आईसीयू से बाहर आए। तो वो जिंदगी क्या फिर अब आपकी है? वो जिंदगी किसकी है? तो फिर वो जिंदगी किसको देनी है? लेकिन हम फिर उस मौके को 2-3 बार टेस्टिमनी देने के बाद भूल जाते और फिर हम अपनी पुरानी जिंदगी में, तो क्या वो फिर मौका कायम रह सकता है? आप
जो नई जिंदगी आपको मिली है, आपको जो नई जिंदगी मिली है, तवानाई मिली है, आपके काम को खुदा ने मुकम्मल किया है, क्या जरूरी नहीं कि आप खुदा के कामों में लगाएं वो जिंदगी? हालेलुया। तो जरूरत इस बात की कि आज हमारे भी कामों में वार्निंग आती है कि ये यहाँ की गलत कर रहे हैं। सोचिए एक मिनट, सोचिए कि क्या वार्निंग आपको मिली इन महीनों में, इस साल में बड़ी वार्निंग मिली होंगी कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है। सोचिए कि आंखें बंद करें, सोचें और इकरार करें कि गुलाम हाँ तूने मुझसे बात की, उस खादिम से की, अपने कलाम से भी तूने मुझसे बात की, तेरे पापों ने मुझे झुंझोड़ा, तेरे पापों ने मुझे मलामत की, और आज मैं खाक और रात में तौबा करता हूँ। आज तेरे हुजूर में, तेरी सुनाई में, तेरे लोगों के सामने मैं अपनी गलती का इकरार करके, अपनी गलती की तौबा करके मुड़ता हूँ, फिर कभी नहीं करूँगी, फिर दोबारा नहीं करूँगी, फिर ईमानदारी से करूँगी, वफादारी से करूँगा। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो ये वार्निंग जो है हमारे लिए अलर्ट हो जाने वाली ये कलाम है, हमें अलर्ट होने की जरूरत है वार्निंग के लिए। यहाँ पर अगर वो अलर्ट हो जाता तो उसके पास तकरीबन जब एली कामिल के पास ये मर्दे खुदा आया, राइट, तो यहाँ पर शामिल तकरीबन उनके पास आया ही था बच्चा, समझ पा रहे? शामिल उनके पास, एली के पास अभी आया ही था, और पीछे लिखा है कि वो ये सब कुर्बानियां चढ़ाते थे, यानी कि वो बड़े से लड़के। अब यहाँ पर सैमुअल छोटा है, तकरीबन 5 से 10 साल तक की उम्र, शायद ये एज हो, लिखा नहीं है। लेकिन इसके बाद जब सैमुअल को खुदा ने बात की है, जब उससे बात की है, इसकी मैं एज बता रही हूँ, 5 से 10 साल उम्र या 12 साल से 15 साल तक, ठीक है। इसके बाद जब सैमुअल बड़ा हो गया है, तब ये सब काम हुआ है कि वो लोग उनसे संदूक छीन लिया गया, उसके लड़के मारे गए। तकरीबन बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ट्रेडिशन एक बात बताता है कि तकरीबन ये 20 साल का पीरियड था जिसमें ये नबूवत उसने सुनी हुई थी, वो जानता था, और एक 20 साल का एक लंबा अरसा जो खुदावन ने बात की है, खुदावन ठहरा हुआ है, तहम्मुल करके वेट कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस लौटेंगे। एली काहिन अपने बच्चों को वापस तरतीब से, जो तरबियत, जो जिस तरह कलाम के मुताबिक तरबियत की जानी चाहिए उसके मुताबिक की कुर्बानियां चढ़ाएंगे, तौबा करेंगे, मुड़ेंगे, तो मैं यकीनन इनको हलाक ना करूंगा। खुदा यही चाहता था, खुदा आज भी आपसे और मुझसे यही चाहता है। खुदा ने अगर आपको और मुझे टाइम दिया है और टाइम दे रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि हम उस टाइम को अवेल करें, उस टाइम में तब्दील हो जाए, बदल जाए। ये जिंदगी जो यहाँ पर है, ये हमारा मुकम्मल ठिकाना नहीं है, हमारा असली ठिकाना ऊपर है, लेकिन हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी बाबरकत ऐसी जिंदगी हो जो और मेरे किसी रहने भाई की ना हो। मैं सबसे बुलंद हूँ। खुदा ने एली को भी बहुत टाइम दिया, एली के लड़कों को भी 20 साल का टाइम पीरियड, क्या छोटा होगा? 20 साल तक पूरी जनरेशन आ जाती है, क्या छोटा पीरियड है? 20 साल का छोटा पीरियड है? आपके मुताबिक जो नबूवत हुई है, हाँ, सैमुअल उस वक्त 12 से 15 साल तक की उम्र के दरमियान था, और उसके बाद जब ये मरे हैं लड़के, और जब एली मरा है रहस्य का संदूक, तो लिखा है कि वहां पे वो इतना बुरा था और ये लड़के और भी बड़े हो गए थे, तो ये तकरीबन 20 साल का टाइम पीरियड है। तो खुदा आज हमारे लिए भी ये, हमें भी ये अलार्म कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि अगर हम भी इस चीज को डिले किए जा रहे हैं और हम चीजें नहीं हो रही, तो वक्त है कि आज हम अपनी गलती का इकरार करें। हालेलुया। क्या हम ऐसा करेंगे? आप करने के लिए तैयार है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जब आप किसी अच्छे काम को करने में, करेक्ट करने में, बोले करेक्ट करूंगा, दूसरों को भी करेक्ट करूंगा, खुद भी करेक्ट होगा, खुद भी अपनी इस्लाह भी करूंगी, अपनी इस्लाह यानी कि अपने आप को भी मैं सही राय दूंगी कि खुदावंद मैंने ये काम करना है, तो मेरी मदद कर, और मैं वो सही काम करूंगी, और दूसरों की भी इस्लाह करूंगी, कहें दूसरों को भी करेक्ट करूंगी, दूसरों को भी करेक्ट करूंगा। ये जिम्मेदारी है। देखकर चुप हो जाना, देखकर इग्नोर कर देना कि उसका है, वो जाने, मुझे क्या पड़ी, नहीं सीधा हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, तो डिले करना, इस चीज को
रोकना खतरनाक हो सकता है। बेबी के पास बहुत टाइम था, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, जैसे जैसे अभी बच्चे बड़े होते जाएंगे, अगर आपने इनको सही उम्र में करेक्ट नहीं किया तो ये बड़े होकर उसी आदत को, इनका दिल सख्त होता रहेगा अगर कोई गलती कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर आपने किसी छोटी गलती से अपने बच्चे को स्टॉप नहीं किया बचपन में, नहीं रोका, तारीफ नहीं की, उनको स्टॉप नहीं किया, तो वो फिर बड़े होकर कोई बड़ा गुनाह कर सकते हैं। ये बरकत, जिसे आप बरकत खुदा का कलाम कहते हैं कि बच्चे को गुलाम की तरफ से क्या है, बरकत है, जो आपके लिए आजमाइश भी बन सकते हैं। क्योंकि आपने जब वक्त था उनकी तरबियत करने का, आपने लापरवाही की, आपने उनके हाथों में फोन पकड़ाए, आपने अपना टाइम सुकून वाला करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए कि मैं रिलैक्स रहूं, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपने लापरवाही की, आप डर गए, सुस्ती की, तो डेफिनेटली ये बच्चे बड़े होकर के शायद आप पर हाथ भी उठाए। मैं यहाँ पर किसी को भी ना तो लानत कर रही हूँ ना तो पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन जब आप बचपन में उनकी कांट छांट नहीं करते तो फिर वो बड़े होकर कुछ ना कुछ पूरा करते हैं। हालेलुया। तो जरूरत है कि वक्त पर उन्हें डिसिप्लिन किया जाए। आइए पहले की जिम्मेदारियां देखते हैं, कुछ जिम्मेदारियां इंसान 13:24 की आए, आप सब जानते हैं, बोलिए मेरे साथ, इंसान 13 और उसकी 24 आए। अगर आपने निकाल लिया तो प्लीज कोई बराबर करे। वो जो अपनी छड़ी को बांध रखता है, अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए इस कलाम की तालियां बजाएंगे। बर वक्त तंबीह, क्या बर वक्त तंबीह, है ना? बच्चे से प्यार करना, मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन करना उसको बहुत जरूरी है। बर वक्त डिसिप्लिन से मुझे याद आया, जब चर्च में हम आते हैं तो हम अक्सर अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं और हम अपने बच्चों को खिलाते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से बच्चा तो चलो ठीक है, उसको तो अभी नहीं समझ में आएगा कलाम, या बच्चे को उसको शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन क्या आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी तवज्जो उस खाने खिलाने में नहीं लगी? कितनी माया रहती है, मेरे साथ लोगों भी कहूंगी, अग्री करें कि आपकी तवज्जो नहीं कभी आप उसके मुंह में डाल रही हैं, कभी उस पैकेट को खोलना, कभी उस चीज को खोलना, कभी पानी को निकालना, कभी बाएं उठ के जाना। क्या आप अपने बच्चों को तरतीब से तैयार करके घरों से खाना खिला के कुछ वक्त के लिए 2-3 घंटे रोकने? बच्चे कितनी देर तक, अगर 2-3 घंटे, मेरे घर में एक नॉर्मल बच्चा 2-3 घंटे तक दूध ना पिए तो उसको कुछ नहीं होगा। तो आपके बच्चे अगर बिस्किट चिप्स नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। गुस्सा है माँ, गुस्सा है। अगर आपके बच्चे थोड़ी देर पानी नहीं पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बोले कुछ नहीं होगा, ये खुदा का घर है, घरों से खिला के लाए, सिलेंडर खिला के लाए, खाना खिला के लाए, जल्दी उठ जाए, थोड़ा सा अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को चेंज करें। माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, फादर्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अपनी बीवियों के साथ दें। सिर्फ बच्चों को पैदा करके बीवी के सर पे छोड़ देना इज नॉट इनफ, और सिर्फ आदमियों पर डिपेंड करना कि वो कमा के आएगा और हम ठीक है घर चला लिए, संभाल लिए, बाकी आप भी अपने आदमियों के साथ पूरे उनके दुखों में, उनकी बातों में शामिल हो, शरीक हो। जरूरत है कि आप अपने बच्चों की तरबियत डिसिप्लिन से, मोहब्बत, लाड, नखरे उठाना यही काफी नहीं है। मोहब्बत करें लेकिन उन्हें डिसिप्लिन करें। छड़ी से बात क्या पढ़ा मस्जिद में हमने? जो अपने बच्चे से छड़ी को बात रखता है वो क्या करता है? कीना रखता है। कीना का मतलब क्या होता है? नफरत, यानी कि वो उनके अगेंस्ट है। आपको लगता है कि हम अगर अपने बच्चे को आज करेक्ट नहीं कर रहे, उनके गुनाह दबा रहे ताकि दुनिया के सामने ना आए, और उनको खुद भी उनको ट्रांसफर कर रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, प्यार से जरूर करें,
क्या हम 15-20 मिनट पहले वो काम जो हमें बाद में करना है, क्या हम पहले नहीं कर सकते? बुलंद आवाज से आप बहने कहेंगी मैं कर सकती हूँ, बुलंद आवाज में कहेंगी मैं सुनना चाहती हूँ बहन की आवाज कितनी है, मैं कर सकती हूँ। बुलंद आवाज से हम कहेंगे, जब तक मुझे पता है आप लोगों की आवाजें बहुत है, अगर मैं यहाँ पर सुनूं कभी कोई इंटरेस्टिंग बात हो तो डेफिनेटली सब बोल उठेगी, सब चिल्ला उठेगी, कहेंगे मैं कर सकती हूँ, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकती हूँ, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए अपने हाथों को बुलंद करके कहेंगे यीशु मसीह में मैं वक्त पर चल आ सकता हूँ। जो लेट कर रहा है उसको मैं सोने दूंगा, उसको मैं उठाऊंगा, कोशिश करूंगा, उसको भिगोड़ के भी उठाऊंगा, लेकिन मैं वक्त पर चल पहुंचूंगा। हालेलुया। हम कर सकते हैं, यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। डिसिप्लिन, मोहब्बत काफी है, जो छड़ी को बात रखता है, नहीं रोकता, बोलते इना रखता है। आमीन, हालेलुया। तो लव योर चिल्ड्रन मगर डिसिप्लिन है, नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी, बिगाड़ पैदा हो जाता है चीजों में। हालेलुया। फिर अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत ना करें कि यहाँ लिखा है कि तू अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत उनकी करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हड्डियों को खाकर मोटे बनो। याद रखिए कि सबसे पहला दर्जा किसका है? खुदा का। आपको मुझे शायद लगता हो कि हम इज्जत नहीं कर रहे अपने बच्चों की, हम खुदा की कर रहे, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आजकल आज के पेरेंट्स से ही हो रहा है। आपको पता कैसे? कितने बहन भाई हैं, कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, बड़े तो क्या, मैं समझती हूँ कि 12-12, 13-13 साल के जो बच्चे हैं ना, आजकल माओ को बाप अपने पेरेंट्स को चला रहे हैं। मामा नहीं ऐसे नहीं करना, आज खाने में ये पड़ेगा, मामा आज ऐसे होना चाहिए, मामा मुझे नहीं जाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे, उससे मुझे ऐसे कह दिया था, माँ बाप भी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? खानदानों की यूनिटी खत्म हो रही है, खानदानों के अंदर जो इतिहास था, क्योंकि वो बच्चों की बात सुन रहे हैं। माएँ चाहती है कि खानदान जुड़े रहे, बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए अब नहीं करना। बच्चे घरों में डिसीजन ले रहे हैं, मामा आपको नहीं पता कि इस जमाने का क्या दस्तूर है, ये जनरेशन अब कैसी है, हम जेनजीज हैं, हम अल्फा हैं, और कौन सी जनरेशन है मैम? हाँ, ये जो न्यू है, आप लोग एक्स जनरेशन हो, हाँ आप लोग पुराने हो। यहाँ पर एक्स वाई जेड जनरेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कलाम की बात है। हम इस जनरेशन के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, हमें ये याद रखना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन, हालेलुया। तो अपने बच्चों की बात जरूर सुने, तवज्जो से सुने, उन्हें इग्नोर ना करें। ऐसा ना हो कि वो बाहर वालों से मशवरे लेना शुरू कर दे या बाहर वालों की सुनना शुरू कर दे, लेकिन अपने बच्चों की ऐसी बातें ना सुने जो खुदा के अगेंस्ट जा रही है, कि उनकी अनहोली डिजायर, यानी कि उनके नापाक जो डिजायर थे, जो जिस्मानी बातें हैं, जो जिस्मानी ख्वाहिशों की बातें हैं, उन बातों में आप उनके साथ चल पड़े। एली ने किया था, या फिर जिस्म के लिए कर रहे थे, एली भी उनके साथ साथ वो जो कर रहे हैं उनको सिंपली सॉफ्टली समझा दिया कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। एली ने कुछ प्रॉपर एक्शन लिया यहाँ पर? एली ने जो प्रॉपर एक्शन लिया था, सॉफ्टली समझा दिया ये गलत है, खुदा के सामने तुम गुनहगार हो रहे हो, खुदा से हम कैसे माफी मांगेंगे, खुदा का गुनाह कैसे माफ कर सकता है, कोई कैसे कोई नजरअंदाज कर सकता है, राइट? लेकिन एली का भी नहीं माना, खुदा का भी नहीं माना। एली ने उनको बताया भी कि लंगोटे नहीं है, ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट? तो जरूर इस बात की कि अपने बच्चों को कलाम से आगाह करें, उनके सामने दुआ करें, उनके सामने आप उनके साथ मिलकर वर्शिप घरों में करें, बाइबल पढ़ें, एक दूसरे का मियां बीवी हाथ पकड़कर दुआएं करें, खुदा के हजूर घुटने टेककर झुके, आसमान की तरफ हाथों को बुलंद करके शुक्रगुजारी करें। जब बच्चे ये देखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी वही सीखेंगे, क्योंकि आपका घर ही स्कूल हो जाता है। आमीन, हालेलुया। अपने बच्चों को टाइम पर करेक्ट करने, नहीं तो उनसे बड़ा गुनाह हो सकता है, और ना सिर्फ उनसे गुनाह होगा, आप भी जवाब दे रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपने बच्चों के रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुदा ने जब आपको बच्चा दिया तो खुदा ने क्या लिखा है कि खुदा की तरफ से पेट का फल तुम्हारे लिए, किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? तो खुदा की चीज में जब आप ख्यानत करेंगे, उनको सही तरबियत नहीं करेंगे, तो क्या आप अमानत में ख्यानत नहीं कर रहे?
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। इसने ना सिर्फ उस कुर्बानी को, हालांकि काम को इसने अपनी खिदमत में लापरवाही की, बल्कि इसने अपने बाप होने के भी फर्ज को पूरा नहीं उठाया। आज हम में से भी बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग लापरवाही पूर्ति कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी पोजीशन को समझें। एली ने ना सिर्फ अपनी पोजीशन को खोया, उन लड़कों ने ना सिर्फ अपनी पोजीशन को खोया, बल्कि वो मरे भी। बल्कि लिखा है कि आगे तुम्हारा कोई टूटा ही नहीं होगा। ये कोई छोटी बात है, तुमने खुद अपने ऊपर लानत बुलाई है, क्योंकि एली को नहीं रोका। बात किससे हुई थी? बात अगर बाप से हुई है, माँ से हुई है। माँ बाप एक तो बात तो अपनी समझा के चुप करके बैठे, क्या ये इनफ है? छड़ी उठाएं, और अगर फिर भी बात नहीं आ रहा तो फिर घुटने हो जाए, खुदा के लिए झुक जाए, बातें काटें, खुदा के लिए रोते रहे। बदलेंगे बच्चे, क्यों नहीं बदलेंगे? हालात बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? उम्मीद है हमारे पास, यीशु मसीह हमारी उम्मीद है। क्या हम एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं कि यीशु मसीह हमारी उम्मीद है? दे सकते हैं बेटा हमारी उम्मीद एक दूसरे को कि हमारी उम्मीद कौन है? खुदा यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, और वो सब कुछ कर सकते हैं, मुझसे करवा सकता है। अगर नहीं मैं करूँगा तो मुझे करवा भी देगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आमेन। अपने बच्चों को अगर आप कवर करेंगे, हाइड करेंगे, छुपाएंगे, माएँ बहुत माएँ होती है इस काम को करने में। ऐसे नहीं किया, तेरे मुंडे नहीं किया थी। इल्जाम तलाशी करने में माएँ भी कहते हैं, पेरेंट्स बात की तो जरूरत इस बात की है कि आज अगर आपके बच्चे ने कुछ गलत किया है, ठीक है, आप उसको डाले भी नहीं, आप बदनाम भी ना करें अपने बच्चों को, ये भी गलत है। अपने बच्चों को ठीक ना करो, लेकिन आप उनको अकेले में जाकर समझाओ, उन्हें गाइड करो, उन्हें तालीम दो, उनकी तरबियत करो कलाम के बाद, तो क्यों ना वो सुने। हालेलुया। आप उनके सामने जो काम करोगे बच्चे वही करेंगे। आमेन। अगर आप आज छुपा दो कि एक छोटी सी चोरी, एक छोटी सी एक टॉफी भी अगर आप उठा के बच्चा खा रहा है और रैपर आपने रख दी है, चलो कि खा लिया, फेंक दिया, बच्चे ने क्या मुझे क्या पता, और माँ को पता चल गया, तो आपको छुपाना नहीं है, आपको उसकी पेमेंट करनी है। आमेन, हालेलुया। और बच्चों को बताना है कि आपने खाया था, ये मैं इसकी पेमेंट कर ली हूँ और आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। हालेलुया। ऐसा मुमकिन है? ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल दी है, क्योंकि बच्चा वहीं से सीखेगा, फिर वो बड़ी चोरी भी कर सकता है अगर उसको उस टाइम नहीं होगा और नजरअंदाज किया आपने। अगर आपने उस वक्त अपने बच्चे को कह दिया आज सो जा, आज चल कोई बात नहीं, तो बड़े होकर कहेगा माँ ने पहली बच्चों में स्टॉप कर दिया था, सर आज इसकी तबियत ठीक नहीं है, आज ये बहुत थका हुआ है, तो बड़े होकर उसको क्या आदत पड़ेगी? अगर आप बच्चे के सामने पूरी चर्च स्किप करेंगे, महीने में 2 दिन चलेंगे, दो संडे नहीं गए, क्या हमें 5 वक्त जाने के लिए बोला गया कि 5 वक्त हैगल में जाना है? कितनी दफा बोला गया? कितनी दफा? खुदा की हजूरी में तो हर दिन रहना है, हर दिन मस्जिद का दिन है, लेकिन हैगल में आने के लिए कितनी दफा? 1 दफा। तो क्या हफ्ते में 1 दफा हम जिम्मेदारी से खुदा की घर नहीं आ सकते? सिर्फ उसी दिन जिस दिन हमें पता है आज हमारा मतलब है, हाँ आज हमारी जरूरत है, आज मैं मुश्किल में हूँ तो आज मैं चला जाऊँ, आज मेरी दवाई नहीं, आज मेरे साथ खुदा ने कोई काम नहीं किया तो चलो कोई नहीं, खुदा तो अपने ही है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ना, मैंने क्वेश्चन लिया है उतनी होगी अदालत में बैठी है, आपको बता दो अदालत है, ओके हिसाब होगा, आपके मुंह की कही एक बात का हिसाब होगा, आपके हाथों में काम होगा, हर चीज का हिसाब किताब होगा, किताबों में लिखा जा रहा है, आपकी अच्छाइयां भी आपकी बुराइयां भी। तो जरूरत है कि हम यहीं पर तौबा करके सच्चाई से डिसिप्लिन के साथ अपने कुरान में बढ़ते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी सपोर्ट, आपका फेवर सब खुदावन के हुक्म के ताबे होना चाहिए। अगर आपका बच्चा खुदा के मुखालिफ जाकर आपसे कुछ करवाना चाह रहा है या कोई और शख्स आपको नजर आ रहा है कि ये खुदा के अगेंस्ट बात है, डोंट डू इट, चाहे वो कोई भी हो। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? चाहे वो कोई भी है, अगर कोई खुदा के कलाम के अगेंस्ट आपसे कुछ करवाना चाह रहा है
या आपको शामिल करना चाह रहे हैं तो डोंट गो फॉर इट। खुदा दिल देखता है। खुदा क्या देखता है? औहदा नहीं देखता। इसीलिए जब फितरती में दिल के मुआफिक था उसको कहा मुझे दिल किया, तो खुदा ने साउल को किससे रिप्लेस किया? दाऊद से। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एली और उसके बच्चों ने जब बेईमानी की, बेहुरमती की, खुदा से हुक्म की, रसूली की, तो हम देखते हैं कि कौन उसकी जगह पर उठता है? शमूएल को खुदा ने उठाया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हमारी जगह पर कोई और आ जाए। तो अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अपनी पोजीशन सिर्फ दिल को लेकर संभाली जा सकती है कि आप अपना दिल खुदा के साथ हैं। आमीन। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। एक दुआ करेंगे हम तमाम जितने बुजुर्ग हैं, सरबराह हैं, लीडर्स हैं। सोचिए क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी कॉलिंग को, अपने माँ बाप होने को, बीइंग फादर एंड मदर, बीइंग अ लीडर, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एल्डर्स, हम क्या अपनी जिम्मेदारी को, अपने रोल को सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ निभा पा रहे? पूरे दिल के साथ, पूरी अकीदत के साथ, पूरी इज्जत के साथ हम ऐसा कर पा रहे? मैं चाहती हूँ कि सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के आदमी यहाँ पर आए और दुआ में रहनुमाई करें कि खुदा तुम्हारी मदद करे। हाँ खुदा हमें अच्छे माँ बाप बना, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ अपने बच्चों को लेकर चलने वाले हैं। हमें ऐसे लीडर्स बना जो खुदा सच्चाई से, दिल से, ना सिर्फ खुदा मुंह से इकरार करने वाले हों कि हम खुदा के एजेंट हैं, हम खुदा के मंसूब हैं, हम खुदा के लोग हैं, बल्कि खुदा की हजूरी में वफादारी और सच्चाई के साथ चलने वाले हों और अपना दिल खुदा के सामने उड़ेले और दिल से खुदा की खिदमत करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और दुआ करनी शुरू करें। मेरे दरबार से खुदा के खादमों के लिए यहाँ सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। सब कलीसिया के लिए आज जो आप बुजुर्ग हैं, आप जो एल्डर्स हैं, आप जो खादिम हैं, आप जो कलीसिया के रहनुमा हैं, रहबर हैं, आप खुदा में आप कलीसिया के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप आदमी पर ये भी जरूरी है कि अपने बच्चों की देखभाल करें। अपने बच्चों को देखें कि कहीं मैं बाहर के बच्चों को संभालते अपने बच्चों में तो नहीं ऐसा हो रहा, आप में तो नहीं हो रहा। जरूरत से बात की दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू Hallelujah. Hallelujah. आज के काम पर हमें गहराई से तवज्जो करने की मदद अता करके आज अपने कलाम पर हमें तवज्जो करने की तौफीक देते हैं। ताकि गैर खुदा हम अपनी जिंदगी में तेरे मकसद को जान सके, अपने घरानों में, अपनी आसौरात में तेरे मकसद को जान सके। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक दे, हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद तेरे खिलाफ होकर सजा न खाए। जैसे कि खुदावंद तेरे कलाम ने आज हमें सिखाया, लेकिन तूने अपने कलाम को बच्चे पर जाहिर किया, क्योंकि तू छोटों पर जो तेरे आगे आजिज़ हो जाते हैं अपने कलाम को खोलता है, ताकि दूसरों तक तेरा कलाम पहुंचा सके। आज खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम के उन कीमती मोतियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन जिंदगियों से हमने सीखा खुदावंद कि हमारी राहें तेरी नजर में दुरुस्त हो जाए, और हम जो खुदा तेरे
لوگ کہلاتے ہیں اپنی زندگیوں کو تیرے لائق بنا سکے. آج خدا ہم سے اس بڑی محبت کو بھی یاد کرتے ہیں کہ تو بر وقت تنبیہ کرتا ہے کیونکہ تو اپنے لوگوں کے بھلا کرنے ہی چاہتا ہے. آج ہمیں اس کلام پر غور کرنے کی توفیق عطا کر کہ جو لوگ خداوند تیرے کلام کے خلاف چلے, جنہوں نے خداوند تیرے گھر میں بدکاریاں کی, تو نے ان کی کیسی عدالت کی, اور تو آج بھی خداوند ہر ایک کی خداوند جو تیرے خلاف کھڑا ہوتا ہے, تیرے گھر میں تیری مخالفت کرتا ہے, اپنی زندگیوں میں خداوند تیرے مقصد کو نہیں جانتا, تو آج بھی خداوند اس کی عدالت کرتا ہے. اے خداوند خدا, ہم تیری خادمہ کے لیے, تیری بندی کے لیے, جس نے خداوند تیری پاکیزگی کی تحریک میں تیرا کلام ہم تک پہنچایا, تیری بندی پر بڑی برکت مانگتے ہیں خدا, اور ہمیں تو نے سکھایا کہ تیرے گھر میں, تیرے خوف میں اور تیری اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی ہے. اے خدا, تاکہ وہ لعنت جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اور ہماری آسودات پانے کو ہے, اے خداوند ہماری فرمانبرداری سے وہ لعنت ہم پر نہ آئے. آج جتنے خداوند تیرے گھر میں تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں, اس خاندان کی زندگی کی مثال ہمارے لیے خداوند مشورہ بن جائے, تاکہ خدا تیرے خوف میں اپنی زندگی گزارے, اپنی آسودات کی تربیت کرے, چھڑی سے خدا کی تربیت کرے, تاکہ واپس پانی ہم خود بھی سزا نہ پائیں اور ہماری آسودات بھی سزا نہ پائیں. کرے گا آج تیرے کلام ہر ایک دل پہ گھر کرے, آج تیرے کلام بے انجان واپس نہ چلا جائے گا, لیکن تیرا پاک خدا آج پہلے دور پر اسلام کو سمجھ لے, اس کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں سکھا کہ تو ہمارا حاکم ہے, ہمارا رہنما ہے. تیرا کلام ہمیں سکھائے کہ خدا اس مسافرت کے زمانے میں ہمیں کیسے چلنا ہے, اور کیسے خداوند ہم اپنے خاندانوں کے اسلام کی مانگ سکتے ہیں. اے خدا اپنی بندی کو بڑی برکت دے. اے خدا اس کلام کو سننے کی, سمجھنے کی, قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے گا. یہ کلام ہماری زندگیوں سے خالی نہ لوٹ جائے, بلکہ خداوند کے دور پر والدین کی حیثیت سے, خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے, اور تیرے گھر میں تیرے خادم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکے. ہمیں اس کی توفیق دے, برکت دے, اور خداوند اپنی بندی کو اپنے جلال اور اپنی کلام کی خدمت کے لیے قدرت اور کثرت کے ساتھ استعمال کر. اپنے سارے خدمت گزاروں کو جو اس گھر میں کسی بھی دور سے خداوند تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں, یہ کلام ان کی زندگیوں میں کہیں جل پڑ دے, تاکہ جیسے جیسے یہ خدمت میں آگے بڑھتے ہیں تیری پہچان میں اور تیرے کلام کی فرمانبرداری میں بڑھتے چلے جائیں. تیرا فضل چاہیے, تیری مدد چاہیے. ہماری دعا کو سنیے, قبول کیجیے. آپ کے بیٹے اپنے ملک کے پاک ضرورت اور قدس نام کا واسطہ دے